Good evening, students, and once again welcome in the world of partnership accounting. Today, I will tell you about the concept of hidden goodwill in partnership accounting. Hidden goodwill. If in a question of partnership, the goodwill of the firm is not given, or if the new partner is coming and how much goodwill he is bringing is not given, then this becomes a challenge for you to how to calculate and how to pass journal entry for goodwill. So let us take a question to understand how to calculate hidden goodwill. In the given question, X and Y are two partners whose ratio is given 3:2 and their capital contribution is 1,50,000 by X and 1,30,000 by Y. Z is the new partner. Z is new partner for 1/5 share. And brings rupees 1,20,000 as his capital. One more information is given: loss on revaluation is rupees 20,000. Now what you have to do, calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries. Now, so far passing journal entries concerned, what journal entries you are supposed to pass? Let us pass the journal entries. Journal entries at the time of admission of Z. Z is bringing 1,20,000 as his capital. तो ये एंट्री तो हम पास कर देंगे. Suppose he is bringing cash for capital. तो cash account debit to Z's capital account. This journal entry we have passed for bringing capital. But you know it very well that when new partner comes, he brings some amount for goodwill. But goodwill is not given here. Neither firm's goodwill is given, nor it is given कि how much amount the new partner Z is bringing for his share of goodwill. So we have to calculate this hidden goodwill, and for this what we have to do? We have to compare two things. One is real capital of the फॉर्म. फॉर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है, जो रियल कैपिटल है, वो क्या होगी? एक्स का हिस्सा 1,50,000, वाई का हिस्सा
1,30,000 यानी y का कैपिटल, x की कैपिटल, y की कैपिटल प्लस z जो ला रहा है 1,20,000 इस कैपिटल, ये तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। साथ में एक चीज दिया हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ₹20,000। ये जो लॉस हुआ है ये x और y को डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट किया जाता यानी जोड़ा जाता, लॉस है तो इसे हम x y को डेबिट करेंगे और इनकी कैपिटल उस वैल्यू से कम हो जाएगी। 20,000 रुपए को हम बांटेंगे 3:2 में, यानी ओवरऑल 20,000 रुपए से कैपिटल कम होगा, तो -20,000 दैट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। This is X capital, this is Y's capital, this is Z's capital minus loss on revaluation 20,000. How much it is total? 150, 1 30, 2 80, 4 लाख और माइनस 20,000 यानी टोटल 3,80,000। तो एक तो हम रियल कैपिटल एक्चुअल कैपिटल को हम जोड़ लेंगे, कोई एडजस्टमेंट है तो उसे प्लस माइनस कर लेंगे, और दूसरी चीज जो हम निकालेंगे दैट इज कैपिटल ऑफ द फर्म, capital of firm on the basis of new partners capital। तो आप यहां देख रहे हैं कि जेड ला रहा है 1/5 शेयर के लिए कितना, 1,20,000 रुपए। इसका मतलब अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एक्स है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म x है, तो x का 1/5 ये कितना ला रहा है, 1,20,000, यानी x 1/5 के लिए आ रहा है। यानी क्या माना जा रहा है कि जो फर्म की कैपिटल है उसका 1/5 1,20,000 ला रहा है, यानी फर्म की कैपिटल अगर x है तो उसका 1/5 1,20,000। कितने का 1/5 1,20,000 होता है, यानी x की वैल्यू हम निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,20,000 इंटू 5 यानी 6 लाख। सो अब इस वैल्यू को हम कंपेरिजन करेंगे। सो नाउ गुडविल ऑफ द फर्म is equal to actual capital, capital of the firm, rather you write total capital of total actual capital of the firm on the basis of new partners capital minus total actual capital after adjustment। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है, 6 लाख रुपए, माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल, टोटल रियल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट वो कितना है, 3,80,000, घटा दिया तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई, 380 20 40 2,20,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई, जो हिडन थी वो हमने इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया कैपिटल कंपैरिजन करके। अब ये जब आ गया तो हमें ये निकाल लेना है कि जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,20,000 टोटल फर्म की गुडविल है डिवाइड बाई 1/5 यानी 5 चौका 20, 5 चौका 44,000 रुपए।
44,000 रुपये जो है जेड का शेयर होगा। और ये जेड को लाना था, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, इसका मतलब जेड नहीं ला रहा है, तो इसके लिए जेड के करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जेड का कैपिटल के अलावा कोई और बैलेंस फॉर्म में नहीं है। जेड इज द न्यू पार्टनर। कैपिटल तो ओरिजिनल कैपिटल है, इसके अलावा कोई और फंड नहीं है, इसलिए हम जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? एक्स और वाई को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 2x कैपिटल टू वाइस कैपिटल। अब अगर सवाल में नया रेशियो दिया होता तो हमें नए रेशियो में से पुराने रेशियो को घटा करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता, लेकिन सवाल में कोई नया रेशियो नहीं दिया है, इसलिए जो एक्स वाई का पुराना रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई जो 1/5 देंगे जेड को, वो इसी रेशियो में देंगे, इसलिए हमें फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो 44,000 रुपये का हमें 3/5 या 2/5 निकाल लेना। 5/40 40 8800। 3 के 4 80 लगा 2, 3/24 26 26,400 और 2 0 0 2 0 2 88 लगा 1 17,600 18 और 24। ठीक है, तो 26,400 एक्स को क्रेडिट किया जाएगा और 17,600 वाई को क्रेडिट किया जाएगा, गुडविल का पैसा, और जेड के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 44,000 से। तो इस प्रकार से हमने जेड के कैपिटल लाने की भी एंट्री कर दी, और गुडविल चूंकि वो कैश में नहीं लाया था इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर हिडन गुडविल इज गिवन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हिडन गुडविल का कैलकुलेशन हम करते हैं, उसका फैक्ट क्या है वो हमने आपको समझा दिया। स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम you may write in the comment section, and please do not forget to subscribe to my channel, share with your friends and give your likes and comments. If you are on first time on my channel, then please subscribe to it and share with your friends. Thank you.